Well, good morning, students. Let's see the information of the lecture. September 10, 2020, class 10th, subject English. And the book we are reading is Footprints Without Feet. And this is lesson number 6 we are reading. The making of a scientist. That's very important, which will help us to make our goals clear forward. What sort of things are to be done, what we want to become in our life. That's very important. And that's written by Robert W. Peterson. And this is lecture number 2. That's very important because in the first lecture, we completed half of the part of the text. Now we are at the second half of the text. So now just concentrate on this. So now the pages before you students see this. We are at the second last para of this page. First, second, third, fourth. First 4 paras we completed in the last lecture, in the first lecture, and we are at the second last para of this page. So let's just concentrate on the reading text, students. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. Now here what we understand, he's talking one of the species of butterflies, this monarch and a viceroy. These are the species of butterflies. तो वो बताता है कि नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या हुआ, his science fair प्रोजेक्ट जो था, उसका साइंस का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था कि ये टेस्ट करना है कि क्या थ्योरी थी इसकी कि जो वाइसरॉयज होती है बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स कि वो मोनार्क को क्यों कॉपी करती है. That was very important. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब ये जो monarchs butterflies होती हैं और ये जो viceroys होती हैं, ये viceroys जो होती है ना monarchs की तरह दिखती हैं, resemble करती हैं, उसकी तरह लगती हैं. उसका एक रीजन वो देता है कि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. जो बर्ड्स जो हैं मोनार्क्स को खाते हैं, सो ये उनके लिए अच्छा टेस्ट नहीं होता है. These don't taste good to birds. इसके अलावा वॉइस रॉयज ऑन दी अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. और जो वॉइस रॉयज होती है वो काफ़ी टेस्ट देती हैं बर्ड्स को, जो बर्ड्स जो है उनको खाते हैं. व्हेन बर्ड्स ईट वॉइस रॉय, दिस गिव देम गुड टेस्ट, उनको एक अच्छा टेस्ट देती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. जितनी वो ज़्यादा monarch butterflies की तरह लगती हैं, उतनी ही कम, the less likely they are, उतनी ही कम जो है वो birds का खाना बनती हैं, become a bird. Students, there was a bit problem of internet and there can be today. So just have patience, remain with the class. It can connect automatically within a few seconds actually. So we just need to be concentrated. Let's see the next one. So जितनी वो मोनार्क की तरह दिखती थी वॉइस ओवर बटरफ्लाइज, उतनी ही बर्ड्स का कम खाना बनती थी वो, right? Abright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. और एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था वाक्य में कि वास्तव में जो ये बर्ड्स होते हैं मोनार्क्स को खाते भी हैं कि नहीं. He found that a starling होती है चिल्ड्रन मैना, अ टाइप ऑफ बर्ड. हिंदी में हम जिसको मैना बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्टारलिंग बोला जाता है. वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, और वो जो है कोई साधारण खाना नहीं खाती थी जो बर्ड्स खाते थे बेसिकली.
It would eat all the monarchs it could get. और ये all the monarchs, जितनी भी monarchs होती थी उन सबको खा लेती थी. Bright said later, research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. और वो बताते हैं कि अपनी थ्योरी के अंदर उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जो वॉइस वॉइस थी वो monarch को जो है कॉपी करती थी. Probably do copy the monarch. Monarch को कॉपी करती थी. This project was placed first in the zoology. और पहले तो जो है इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी के अंदर प्रेजेंट किया गया, प्राणी विज्ञान जिसको कहते हैं जूलॉजी डिवीजन, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. और जो है उसको थर्ड पोजीशन मिलती है वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट और थियरी जो उसने ये प्रोवाइड कराई थी वहां पर. दिस वाज रिमार्केबल इन हिज लाइफ, though it got the third position there, right? So let's go ahead. In the second year in high school, now we read the next one. I hope you can see. Yeah, it's okay. And high in his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Unknown insect, जैसे भी एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की स्टडी के बारे में डिस्कवर थी उसने, जो डिस्कवरी की थी. इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. और इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जो ये स्टडी कर रहा था, इनडायरेक्टली इसको क्या मिला कि भाई वो ये स्टडी कर पाया कि न्यू थ्योरी क्या बनी उसकी कि लाइफ ऑफ सेल्स, कि भाई सेल्स की लाइफ के रिलेटेड उसको जो है कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं. That was a bit different. The question he tried to answer was simple. और जिस क्वेश्चन का वो आंसर फाइंड आउट कर रहा था, what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? monarch का जो pupa बनता है, one of the life cycles जो pupa है उसके ऊपर जो है 12 tiny gold spots होती हैं, छोटे छोटे gold spots. You must have seen on the butterflies basically. Tiny gold कलर के होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स पाए जाते हैं मोनार्क के ऊपर. और उसका ये जानना जरूरी था कि भाई ये क्यों है और किस लिए. एवरीवन assumed the sports were just ornamental. और हर कोई ये बात assume कर रहा था कि ये जो स्पोर्ट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी, ornamental means students to just make the personality good. Ebright said, but Ebright ये बताता है, but Dr. Apfart didn't believe it. लेकिन जो डॉक्टर अफवाट थे उन्होंने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया. To find the answer, a bright and other excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब उन्होंने क्या किया कि और एक दो अच्छे स्टूडेंट्स को लेकर के पहले तो वो डिवाइस बनाया जो ये स्टडी कर सके, जो ये दिखा सके कि जो हार्मोन्स होते हैं वो नेसेसरी मीन्स कुछ डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर, प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन. ये जो स्पोर्ट्स होते हैं बेसिकली, जो स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर गोल्ड स्पोर्ट्स कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, कि उसकी बॉडी की जो है फुल डेवलपमेंट हो सके. दैट वाज अ बिट you see they were getting very important points here. This project won a bright first place in the county fair. काउंटी फेयर के अंदर जब वो गया तो उसको इस प्रोजेक्ट का जो है फर्स्ट प्राइज मिलता है. एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर, इंजीनियरिंग फेयर के अंदर उसको जो है एंट्री मिल जाती है इस प्रोजेक्ट के साथ. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी के लिए इसको जो है वहां पर थर्ड पोजीशन वहां पर मिलती है. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. Entomology होता है कीट विज्ञान, जैसे जूलॉजी होता है हमारा प्राणी विज्ञान, ऐसे एंटोमोलॉजी होता है कीट विज्ञान. सो दस वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि भाई ये किस चीज को लेकर के हमारा बना है. उसको जो है वहां पर काम करने के लिए मौका मिल जाता है एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर, जो कि एक आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च था जहाँ पर रिसर्च होती थी आर्मी को लेकर के. वहां भी उसको चांस मिल जाता है अपना वर्कआउट करने के लिए. एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा.
और एब्राइट ने जो है अपनी एडवांस स्टडी शुरू कर दी मोनार्क प्यूपा के ऊपर। That year, his project won first place at the International Science Fair. उस साल जो है ना उसको पहला प्राइज मिला, फर्स्ट पोजीशन मिली इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर, एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और जिसकी वजह से उसको सेकंड चांस मिल गया आर्मी लेबोरेटरी के अंदर वर्क करके रिसर्च करने के लिए समर के दौरान, जो समर वेकेशंस होते हैं। इन हिज सीनियर ईयर, और उसके अपने सीनियर ईयर में क्या हुआ, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और आगे बढ़ जाता है वो। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, और मोनार्क्स के विंग्स को लेकर के वो सेल्स ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क्स विंग in a culture, and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. Now you see, ये रिसर्च थी जिसको लेकर के वो सारा वर्कआउट कर रहा था कि जो हॉर्मोन्स हैं वो गोल्ड स्पॉट से आते हैं, जिससे जो बटरफ्लाईज होती हैं उसके सेल्स डेवलप होते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। फर्स्टली गोल्ड स्पॉट से वो हार्मोन उसको मिलते हैं, ये सारा वो शो करता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर जो है सेल्स को जो हार्मोन्स मिलते हैं, और जिससे उसकी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट होती है। दिस वाज हिज प्रोजेक्ट। तो गोल्ड स्पॉट्स जो है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो उसकी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। That project won first place for the zoology at the international fair, और इंटरनेशनल फेयर में इस प्रोजेक्ट को भी जो है फर्स्ट प्लेस मिलता है वहां पर। He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory, और उसने अपने समर वेकेशंस जो वहीं पे स्पेंड किए लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च करते हुए, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और दो लेबोरेटरीज के, एक तो आर्मी लेबोरेटरी के अंदर और एक यूएस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी के अंदर, ही वाज वर्किंग साइमल्टेनियसली इन बोथ द laboratories to get very interesting or like knowledgeable project to be completed. The following summer, अगले summer क्या हुआ, after his freshman year at Harvard University. Freshman year means he was the first there, fresher was there. जैसे उसका fresh year का finish होता है first year, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और फिर दोबारा जो है एब्राइट जो है एग्रीकल्चर लेबोरेटरी के अंदर वहां पर यूएस में चला जाता है एब्राइट, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और उसके ऊपर जो है जो गोल्ड स्पॉट्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे उसके ऊपर उसने और रिग्रेस वर्कआउट शुरू कर दिया, मेहनत करनी शुरू कर दी, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। और सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत ही एडवांस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको वो लेबोरेटरी में यूज करता था। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते थे स्पोर्ट्स से उसके जो उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता था वो स्टडी करने में सक्सेस हो पाया, आइडेंटिफाई करने में सक्सेस हो पाया, बिकॉज ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द लेबोरेटरी, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, वी कैन से टेक्नोलॉजी की बदौलत ये सब पॉसिबल हो पाया वहां। नाउ ईयर एंड हाफ लेटर, एक से डेढ़ साल के बाद वो कहता है, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियोरी। और एब्राइट को जो है एक नया आइडिया मिल जाता है अपनी थ्योरी को लेकर के, अबाउट सेल लाइफ, सेल की लाइफ को लेकर के, कि भाई सेल की लाइफ कितनी होती है, कैसी होती है। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। केमिकल स्ट्रक्चर जो हॉर्मोन्स के थे उनकी फोटोज के एक्सरेज को जो है वो देख रहा था, और ये देखते देखते उसके दिमाग में आया कि भाई सेल्स की लाइफ कितनी होती है और कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्मोन्स को जस्टिफाई करते हुए, चेक करते हुए। When he saw those photos, और जब चाहिए उसने जो है फोटोज को देखा, एब्राइट didn't shout, वो नहीं चिल्लाया, यूरेका मीन्स ये एक्सक्लेमेशन है, इतना खुश हुआ कि वो चिल्लाया नहीं, फिर भी इतना खुश था, और इवन I've got it, और फिर सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया, बट बिलीव्ड दैट, लेकिन वो इस बात पर विश्वास करता है, along with his findings about insect hormones, along with उसके पास जो वो फाइंडिंग्स थी इंसेक्ट्स को लेकर के, उसके हार्मोन्स को लेकर थे,
The photos gave him the answer to one of biology's puzzles. और बायोलॉजी की कोई एक पजल थी जिसका आंसर भी उसको जो है उस फोटो को देखने से मिल गया था. इट वॉज बायोलॉजीज पजल बेसिकली. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. कि भाई कैसे जो है सेल्स जो है ब्लू प्रिंट प्रिपेयर कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं डीएनए का, of its DNA. DNA is the substance of the nucleus of a cell that controls heredity. Nucleus क्या होता है students? That's the central part of cells containing a genetic material. Genetic material means when we are born or any baby is born, they're having some qualities from the parents or grandparents or great grandparents. So ये जो चीजें हमें मिलती है that's found in the nucleus or in the cells. डीएनए का ही एक सब्सटेंस एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं पाई जाती है. और सेल दैट कंट्रोल्स हेरेडिटी, जो कि हेरेडिटी को कंट्रोल करता है, which I told you right now. It determines the form and function of the cell. और ये determine करता है, decide करता है सेल के फंक्शन को और उसकी फॉर्मेशन को, कि भाई सेल जो है किस तरह से होगा और कैसे इसकी फंक्शनिंग होगी. Thus, DNA is the blueprint for life. और उस समय की बात है, देखो अभी तो हम सबको पता है डीएनए जो है क्या चीज है, बट उस समय किसी को नहीं पता कि डीएनए क्या होता है. उस समय इनको पता चला है कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट होता है एंड दैट इज डीएनए. ये उस समय जो है इसको पता चलता है. Albright and his college roommate, Albright and his college roommate James R. Wong worked all that night. पूरी रात जो उन्होंने मेहनत की that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules. उन्होंने जो है पिक्चर्स बनाई, ड्राइंग्स बनाई और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, to show how it could happen, कि भाई ये किस तरह से होते हैं. Together they later wrote the paper that explained the theory. और दोनों ने मिल के बाद में जो है पेपर्स लिखे, नोट्स लिखे थ्योरी के ऊपर, that explained the theory, कि जिसने इसकी पूरी थ्योरी को जो है एक्सप्लेन किया. Both the friends, Bright and his college roommate, दोनों ने मिलकर के. Surprisingly, no one who knew him. Richard Bright graduated from Harvard with highest honors. Highest honors means ranking के साथ वो जो है ग्रेजुएट करता है हार्वर्ड से. सेकंड इन हिज क्लास of 1510, 1510 बच्चों में से वो सेकंड आया वहां पर, एब्राइट जो था. एब्राइट went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. और फिर आगे बढ़ता है वो अपने ग्रेजुएशन के लिए, कहाँ से, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियरी. और जो थियरी उसने मेंटेन की थी, जो लिखी थी उसने और उसके रूममेट ने मिल करके, उसके ऊपर उसने जो है वहां पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए. ही स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. इफ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, कि भाई अगर थियरी जो है करेक्ट प्रूव करती है, सही प्रूव करती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. अगर उसकी जो थ्योरी थी वो करेक्ट प्रूव करती है, सो ये एक तरह का रेवलेशन होगा, बिग स्टेप, बहुत ही बड़ा कदम होगा इस चीज को समझने के लिए कि द प्रोसेस ऑफ लाइफ, के लाइफ जो होती है हमारी उसका एक प्रोसेस होता है. वो क्या प्रोसेस होता है, हाउ it might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. और ये शायद ही वो कहता है it might also lead, और ये हमें आगे बढ़ा करके लेकर के जा सकती है. कुछ नए आइडियाज हमें इससे मिल सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग कुछ अलग तरह की बीमारियों की रोकथाम के लिए, जो कि जैसे कैंसर की बीमारी होती है और कुछ अदर डिजीज बीमारियां जो होती है, उन सब को लेकर के ये उनकी रोकथाम करने में हेल्पफुल हो सकता है फ्यूचर के अंदर. दिस वाज थॉट, ये विचार था उनका, ये सोच रहे थे वो लोग. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाया एब्राइट जो साइंटिस्ट था उसकी क्यूरियोसिटी को लेकर के, उसकी जिज्ञासा को लेकर के. His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life.
अब देखो हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि उसकी हाई स्कूल की जो रिसर्च थी, ये जानना कि जो ये स्पोर्ट्स हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये क्यों है, उसका उद्देश्य क्या था, और इवेंचुअली बाद में जो है वो किस तरफ उसको लीड करके उसकी तरफ लेकर के जाते हैं कि भाई थ्योरी अबाउट सेल्स लाइफ, सेल की जो जिंदगी होती है उसकी जो लाइफ होती है वहां तक उसको जो है वो लेकर के आगे बढ़ते हैं, जाते हैं। दैट्स ऑल। तो ये हाई स्कूल की स्टडी उसको जो है बताती है। रिचर्ड एवराइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस since he first began collecting butterflies। अब देखो हमें पास्ट के बारे में कुछ बातें पता चल रही हैं कि रिचर्ड एवराइट जो था हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, वो शुरू से ही इंटरेस्टेड था साइंस के अंदर। सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जब से उसने जो है बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, बट नॉट सो डीपली, लेकिन वो कहता है कि इतना गहन नहीं किया, दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, भाई इतना भी नहीं था कि उसने अपने अदर इंटरेस्ट्स को इग्नोर कर दिया। एवराइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर, अपने समय में वो जो है चैंपियन डिबेटर भी रहे वहां पर। सॉरी। एंड पब्लिक स्पीकर, public speaker means to speak among people, to motivate them, and a good canoeist, canoeist means navik जो नाव चलाते हैं, and all round outdoor person, all round outdoor person means outdoor activities में बड़ा interest लेते थे। he is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits, नेचर की और साइंस की जो है फोटोज खींचने में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे, अच्छे से वो फोटो खींचते थे। दीज वर हिज अदर इंटरेस्ट बेसिकली इंस्टेड ऑफ साइंस, साइंस के अलावा जो थे ये ब्राइट के कुछ इंटरेस्ट से, इनको लेकर के 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि भाई उसके अदर इंटरेस्ट्स क्या थे। सो यू राइट दीज ऑल पॉइंट्स हियर। In high school, Richard Ebright was a straight a student, वहाँ पर बिल्कुल सीधा साधा एक स्टूडेंट ही था ये, because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs। अब वो अपनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगाता था, डिबेटिंग के ऊपर और क्लब्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आउटडोर एक्टिविटीज में। He also found someone to admire Richard, और उसको जो है कोई मिला जो उसकी प्रशंसा करता था, वेयर हिज सोशल स्टडीज टीचर, जो उनके सोशल स्टडीज के टीचर थे वो उनकी काफ़ी प्रशंसा करते थे, एडमायर करते थे उनको, एंड एडवाइजर टू बोथ माइंड टू न्यू आइडियाज, और वो एक बोथ क्लब्स और एडवाइजर भी थे वो दोनों क्लब्स के। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, he opened my mind to new ideas। एब्राइट कहते हैं कि भाई जो मिस्टर वेयर थे, जो साइंस के उनके टीचर थे, परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए, जिन्होंने मेरे दिमाग, ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज को लेकर के मेरे दिमाग को उन्होंने खोल दिया कि भाई किस तरह से नए आइडियाज को जनरेट किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, स्टार्ट और एंड किया जा सकता है। दिस वाज ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर वेयर who was the SS teacher of his। Richard was always gave that extra effort, Mr. Weird said, और मिस्टर वेयरट जो उसके एसएस टीचर थे वो कहते थे कि जो रिचर्ड था ना वो किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी असाइनमेंट में हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करता था। What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests। वो किस बात को लेकर के उसकी बड़े खुश रहते थे, what pleased me was, क्या बात थी जो उसे खुश रखती थी मिस्टर वेयर को। He was this person who put in 3 or 4 hours at night, 3 से 4 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा पुट करता था अपनी नाइट में, डूइंग डिबेट करते हुए, रिसर्च बिसाइड्स इसके अलावा रहता था, डूइंग ऑल हिज रिसर्च आवर्स एट नाइट, नाइट में डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग
all his research. जो डिबेट के अलावा जो उसकी अदर रिसर्च थी, डूइंग ऑल द रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, यानी कि वो अपने बटरफ्लाइज इंटरेस्ट के अलावा अदर इंटरेस्ट को भी वो टाइम देता था और उनको कंसीडर करता था. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड. ये सारी बातें बताते हुए मिस्टर वेयर जो थे कंटिन्यू करते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन वो कहते हैं बुरी सेंस में नहीं. ही एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हैं, रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड, रिचर्ड जो था इतना इंटरेस्टेड नहीं था इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक, केवल वो जीतने के लिए ही नहीं जो है पढ़ता था, स्टडी करता था, रिसर्च करता था, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, और या फिर प्राइज लेने के लिए वो ये सब नहीं करता था. रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, और वो इसलिए जीतता था क्योंकि वो अपना बेस्ट करना चाहता था. ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजंस, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और वो सही रीजंस के लिए, सही चीजों के लिए जो है अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहता था. ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो चाहता है कि वो बेस्ट बने. मिस्टर वेयर ये बातें बताते थे, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और ये जो बातें हैं ये सारी जो है किसी एक साइंटिस्ट को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए उसकी वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड होती है. इंग्रेडिएंट उसका एक पार्ट है. स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी. फर्स्ट रेट माइंड मीन्स बिल्कुल खुले दिल से, खुले दिमाग से काम करना है, एंड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसको हम कहते हैं, एंड मिक्स इन ऑल इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और अपनी इसको जो है मिक्स करके रखना चीज़ों को, क्योंकि वे राइट रीजंस के लिए हमें चीज़ों को डेवलप करना है, ना कि रॉन्ग रीजंस के लिए. एवराइट हैज थ्री क्वालिटीज. एवराइट की जो है तीन क्वालिटीज थी, थ्री क्वालिटीज फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. उसकी तीन क्वालिटीज थी ये, जब से जो है उसने ये चीज़ें पढ़नी शुरू की, जब बुक उसकी मदर ने उसको दी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स जो बुक जो उसकी मदर ने दी थी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस का दुनिया के बारे में उसके सारे दरवाजे खोल दिए थे टू हिम, उसके लिए. रिचर्ड राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. अब सबसे समझने वाली बात यह है कि रिचर्ड ने जो है अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा थी साइंस को लेकर के उसके दिल और दिमाग के अंदर, उसने कभी नहीं खोई. वो नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. दिस वाज द रिमार्केबल पॉइंट व्हिच हेल्प्ड हिम टू बिकम a great scientist. That's it for today's lecture, students. A few points I want to discuss with you, that from this text or this lesson, or a bit small biography of a scientist, helps us that if you plan to do anything in your life, you learned here that how a scientist's life started. Suppose you want to become something in your life, you must have decided, because you are in the 10th standard, you must have decided either you want to be a teacher or wanted to be a banker or scientist, we can say. You must have started the work, right? So this makes us clear the things like, if the one wants to be something, the one has to start his or her study, research, R&D things in his or her life from the very starting, which can help him or her to go ahead and to just do something different than others in his or her life. So thank you very much for today's class, students.